Good morning, students. Chapter number 9. It's raining. Question number 1. Choose the correct alternative from those given below each question and write in text letter in the box provided against each questions. First question is, who was Apu? Apu कौन था? Elephant, elephant's friend, monkey or fox? Answer is A, an elephant. So we have to write here A. Number 2, how did Appu water the banana trees? How did Appu water the banana trees? With a bucket, with a mouth, with its trunk, by opening a tap. अप्पू ने बनाना ट्री के ऊपर पानी कैसे डाला था? किसकी मदद से? With its trunk. Answer is C. So we have to write here C. With what does Appu sprinkle water on himself to have a bath? बाथिंग के लिए अप्पू ने किससे पानी डाला था अपने ऊपर? With its mouth, with its trunk, with its ear, with its teeth. Answer is B, trunk. So we have to write here B. The next question is, how do you give water to the pets like cow, buffalo, ox, goats, etc. in your house? आप किसकी मदद से पानी देते हो अपने पेट्स को? By taking them to the river, by taking them to the well, in a bucket at home, by taking them to the sea. तो हम उसे पानी कैसे देते हैं? In a bucket at home. So we have to write here C. Next is number 5. In which season do people use umbrellas and raincoat? कौन से सीजन में पीपल्स umbrellas and raincoats यूज़ करते हैं? In winter, in monsoon, in spring, in summer. Answer is B, in monsoon. So we have to write here B. Number 6. In which season does it rain? कौन सी सीज़न में रेन आती है? Summer, in winter, in spring, in monsoon. Answer is D, in monsoon. So we have to write here D. Number 7. What do children make from paper to play in rain water? Children क्या बनाते हैं पेपर से रेन वाटर में खेलने के लिए? A, toys, cars, boats or designs. Answer is C, boat. So we have to write here C. Next question, from what are clouds formed? Cloud किससे बनते हैं? From white cotton, from vapor that collects in the sky, from smoke of industries, from smoke of rockets. Answer is B, from vapor that collects in the sky. So we have to write here B, because our right answer is B. Question number 2. Fill in the blanks in each sentence with an appropriate word. An elephant drinks water with its dash. Elephants किससे पानी पीते हैं? With its trunk. So we have to write here TRUNKS, trunks. Number 2. Rivers get flooded during the dash season. रिवर कौन सी सीज़न में फ्लोडेड हो जाते हैं, भर जाते हैं? आंसर इज ए, रेनी, RAINY, रेनी. रेनी सीज़न में जो रिवर्स होती है वो पानी से भर जाती है. नंबर 3. द रेनी सीजन इज ऑल्सो नॉन एज द डैश. रेनी सीजन को और क्या कहते हैं हम? मॉनसून सीजन भी कहते हैं ना. तो आंसर लिखना है हमें MONSOON, मॉनसून. नंबर 4. वेपर कलेक्ट्स इन द स्काई टू फॉर्म डैश. वेपर कलेक्ट होती है और स्काई में फिर वो वेपर से क्या बनता है? तो CLOUD, क्लाउड. क्या बनता है? क्लाउड बनता है. द अर्थ इज कवर्ड विथ डैश ऑल अराउंड ड्यू टू रेन्स. रेन की वजह से पूरे अर्थ के ऊपर क्या फैल जाता है? किससे कवर्ड हो जाती है पूरी अर्थ? तो
ग्रीनरी से कवर्ड हो जाता है। सारी जगह पर ग्रीनरी ग्रीनरी हो जाती है ना जब भी बारिश आती है। तो आंसर इज GREENERY, ग्रीनरी। When clouds cool down, water droplets are formed within them. When these droplets come down to earth, we call it dash. जो क्लाउड्स ठंडे होते हैं और उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं। फिर When these droplets come down to earth, जब भी ये ड्रॉपलेट्स अर्थ के ऊपर नीचे आते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? तो ये सारे ड्रॉपलेट्स को हम कहते हैं रेन, RAIN, रेन। पीपल यूज डैश टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम रेन, बारिश से बचाने के लिए पीपल क्या यूज़ करते हैं बारिश से बचने के लिए? तो अम्ब्रेलाज यूज़ करते हैं, UMBRELLAS, अम्ब्रेलाज। नंबर 8, ड्यूरिंग रेनी सीजन लाइटनिंग इज सीन फर्स्ट एंड देन द साउंड ऑफ डैश इज हियर्ड। पहले क्या होता है? पहले हम क्या देखते हैं? लाइटनिंग देखते हैं और उसके बाद फिर हमें क्या सुनाई देता है? थंडर, THUNDER, थंडर। राइट और रॉन्ग? क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 1, वेट क्लोथ्स डू नॉट ड्राई क्विकली इन द रेनी सीजन। राइट और रॉन्ग? राइट। रेनी सीजन में जो क्लोथ्स होते हैं वो जल्दी से सूखते नहीं हैं, तो राइट। नंबर 2, वी कैन सी लाइटनिंग ड्यूरिंग द विंटर सीजन। विंटर सीजन के दरमियान हम लाइटनिंग देखते हैं, बिजली देखते हैं? नो, रॉन्ग। क्लाउड्स टेक वाटर फ्रॉम द सी दैन कम्स डाउन टू अर्थ एज रेन। जो क्लाउड्स होते हैं वो सी के अंदर से पानी लेते हैं, फिर वो हमें बारिश की तरह नीचे अर्थ पे मिलती है? नो, वाटर वेपर्स होती है, उससे हमें जो क्लाउड्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं, फिर वो वाटर वेपर्स कूल होकर क्या होती है? वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और वो वाटर ड्रॉपलेट्स फिर एज अ रेन, बारिश की तरह वो नीचे गिरते हैं। इफ़ इट इज़ हॉटर इन समर देयर इज़ मोर रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून। क्या अगर गर्मी बहुत ही होगी समर में तो ज़्यादा बारिश आएगी मानसून में? यस, राइट। वी कैन सी वेरियस शेप्स इन क्लाउड्स। हम क्लाउड्स में बहुत सारे शेप्स, वेरियस अलग अलग प्रकार के शेप्स देखते हैं। यस, देख सकते हैं। यस। अपू गेव वाटर टू ऑल द प्लांट्स ऑफ द जंगल। अपू ने जंगल के सारे प्लांट्स को वाटर दिया था? नो, रॉन्ग। नंबर 7, इफ़ इट रेन्स हैवीली रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स ओवरफ्लो। क्या ज़्यादा बारिश आने से रिवर, स्ट्रीम और लेक्स होते हैं वो ओवरफ्लो होते हैं? यस। When it rains very heavily and continuously, it is known as a flood. अगर बहुत सारी बारिश आएगी, ज़ोरों से बारिश आएगी और कंटिन्यूसली बारिश आएगी तो उसे हम फ्लोड कहेंगे। यस, तो उसे क्या कहते हैं? फ्लोड कहते हैं, मीन्स कि पूर आना कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा बारिश कंटिन्यूसली और हेवी बारिश आएगी, मूसलाधार बारिश, तो क्या हो जाएगा? पूर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम्स एप्रोप्रिएटली। रेनी सीजन, रेनी सीजन में क्या होती है? बारिश आती है। यस, तो इट्स रेन, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? ई लिखना है, बिकॉज उसका ऑप्शन क्या है? ई। टू बी सेफ फ्रॉम रेन, बारिश से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रेन कोट यूज़ करते हैं, तो हमें यहाँ पर लिखना है डी। समर, तो समर में क्या होती है? बहुत ही गर्मी होती है, इट इज़ हॉट, तो हमें यहाँ पर लिखना है एफ। लाइटनिंग इज सीन इन द स्काई, तो द थंडर इज हियर्ड। अगर लाइटनिंग होगी स्काई में तो हमें क्या सुनाई देगा? थंडर, सो आंसर इज बी। रेनबो, रेनबो के कलर्स कितने होते हैं? 7 कलर्ड, तो यहाँ पर हमें लिखना है ए।